Welcome students. Keep supporting and subscribing my official YouTube channel to get regular updates. And today we are going to discuss about the dispersion of light. And this topic is for class 10 students. Dispersion of light. Before going on our today's topic dispersion, let me tell you something about the light. When we talk of a light, we actually talk about visible light. What is visible light? Visible light constitutes small portion of electromagnetic spectrum. In electromagnetic spectrum, we have different types of radiations, and visible light or solar radiations constitute one type among them. We have cosmic rays, gamma rays, X-rays, UV rays, visible light, infrared, microwaves, and radio waves. This is our electromagnetic spectrum, and all the radiations are arranged in the order of increasing wavelength. That is, lambda increases. This is the wavelength, and they are arranged in the order of decreasing frequency. Decreasing frequency. And this region constitutes the portion, a certain portion of this electromagnetic spectrum, that is the visible light. And this visible light, we know, is actually a combination of 7 colors. 7 colors. And it lies in all the 7 colors of this visible spectrum, or this spectrum lies in the wavelength range of 400 to 700 nanometers. तो सारे जो कलर्स है वो इसी वेवलेंथ में फॉल होते हैं, राइट फ्रॉम 400 टू 700 नियरली. तो दिस इज द विजिबल लाइट. तो अगर अब डिस्पर्शन की बात की जाए, डिस्पर्शन क्या है? जो हमारी विजिबल लाइट है, दैट इज व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट हमें डिस्पर्शन पे जाना है. व्हाइट लाइट जो है, आज हम जानते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स. तो जब हम ये व्हाइट लाइट देखते हैं, इट डजंट सीम्स दैट इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स. तो हमें मालूम कैसे हुआ कि व्हाइट लाइट जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स है? इट वॉज Isaac Newton for the first time who experimentally proved that this white light actually is composed, or it is constitutes or it is composed of 7 colors. And what he did, we will take a ray of light. Simply उसने एक beam of white light जो है प्रिज्म पे वो फॉल किया. प्रिज्म, दिस इज आवर प्रिज्म, ABC प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म. दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म. ऑलरेडी पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म. एंगल ऑफ प्रिज्म, जो प्रिज्म होता है, इसके 2 रिफ्रैक्टिंग फेसेस होते हैं. वो जो 2 रिफ्रैक्टिंग फेसेस होते हैं, दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट अ सर्टेन एंगल. उस एंगल को हम बोलते हैं क्या? दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म. तो दैट एंगल ऑफ प्रिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट प्रिज्म्स. तो जब ये बीम ऑफ व्हाइट लाइट फेस पे फॉल हुआ, न्यूटन ने क्या देखा? तो दिस बीम ऑफ व्हाइट लाइट गॉट स्प्लिट ऑफ इनटू 7 कलर्स. तो ये जो बीम ऑफ व्हाइट लाइट है, इसको क्या हुआ? ये स्प्लिट हुआ इनटू 7 कलर्स.
वायलेट एंड दिस इज द रेड। तो 7 कलर जो है वो क्या है, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो सिंपली दे कैन बी, these colors can be remembered by Vibgayar. This is the word Vibgayar. So then what is the dispersion? Dispersion क्या है? Dispersion actually it is the phenomenon. क्या है? When एक ऐसा phenomenon, कैसा phenomenon? जब white light prism के थ्रू पास होती है, this white light get split up into 7 constituent colors, and the colors are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Phenomenon when a beam of white light passes through prism, comma, it splits into 7 constituent colors. ये जो बीम ऑफ वाइट लाइट दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, इसको हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम सिंपली क्या है? स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ द कलर्स, ये कलर्स का अरेंजमेंट है। तो देन व्हाट इज द डिस्पर्शन? डिस्पर्शन ऑफ लाइट सिंपली क्या है? ये एक ऐसा फिनोमिनन है जब व्हाइट लाइट पास होती है प्रिज्म के थ्रू, दिस व्हाइट लाइट स्प्लिट्स ऑफ इनटू इट 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसको हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हाउ इट इज पॉसिबल? ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट पॉसिबल कैसे हुआ, ये कैसे पॉसिबल है? तो अगर यहां पे इस फिगर पे गौर किया जाए, सबसे ज्यादा जो डिविएशन हुई है दैट इज द मैक्सिमम डिविएशन जो हुई है, मैक्सिमम डिविएशन किस कलर को हुई है? दैट इज वायलेट। एंड मिनिमम डिविएशन अगर देखी जाए, मिनिमम डिविएशन यानी सबसे कम डिविएशन जो हुई है वो रेड को हुई है। एंड व्हाई इट हैपेंस? जब व्हाइट लाइट पास होती है प्रिज्म के थ्रू या किसी और ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू, इस या और वी कैन से अदर वे, जरूरी नहीं है प्रिज्म होगा, तो जैसे कि इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी मिलती है हमें डिस्पर्शन के। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल नेचर में हमें मिलती है दैट इज द रेनबो। जो रेनबो भी होती है दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ दिस, डिस्पर्शन बाय रेन ड्रॉप्स, जब सनलाइट उन पे फॉल होती है। तो अगर इस पे गौर किया जाए तो यहां पे देखा जाए जो मैक्सिमम डिविएशन हुई है वो वायलेट को हुई है एंड मिनिमम डिविएशन जो हुई है वो रेड को हुई है। मिनिमम डिविएशन रेड को हुई है। What is the actual cause of the dispersion? Why this white light splits up into 7 constituent colors when it passes through prism? So that is, we have to know about the cause of the dispersion. Cause of dispersion. तो अगर विबगोयर की बात की जाए, विबगोयर में each color has its own कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। हर किसी कलर की अपनी अपनी एक यूनिक वेवलेंथ होती है। जैसे कि वायलेट की अगर बात की जाए, वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है दैट इज 3969 एंगस्ट्रॉम्स। तो हम खाली दो एक्सट्रीम कलर्स की बात करेंगे। अगर रेड कलर की वेवलेंथ की बात की जाए, रेड डिनोटेड बाय लैम्बडा, दैट इज द लैम्बडा रेड, तो वो अगर रेड कलर की बात की जाए दैट इज 6563 एंगस्ट्रॉम, और इट कैन बी ऑल्सो, वी कैन राइट इट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर्स एज वेल, और एंगस्ट्रॉम है, दोनों में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दिस द वेवलेंथ ऑफ वायलेट एंड रेड कलर्स। तो अगर देखा जाए, लाइट की बात की जाए, लाइट की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज वी, वो इन एयर और वैक्यूम दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज कांस्टेंट। तो हर किसी कलर के लिए स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है।
हमारे पास एक रिलेशन है, दैट इज v इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज न्यू। अगर यहां पे देखा जाए हर किसी कलर की जो स्पीड है दैट इज कांस्टेंट, लेकिन अगर देखा जाए लैम्बडा दैट इज वेवलेंथ, हर कलर की अपनी अपनी यूनिक वेवलेंथ है। इट मीन्स इन ऑर्डर टू कीप दिस v कांस्टेंट, अगर लैम्बडा की बात की जाए, लैम्बडा तो डिफरेंट है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी कलर विल ऑल्सो बी डिफरेंट। frequencies of colors are also different। तो फ्रीक्वेंसी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करेंगे कि जब हम देखते हैं तो हम किसी कलर को देखते हैं, हाउ वी कैन से दैट दिस इज ग्रीन, दिस इज रेड, दिस इज वायलेट। एक्चुअली ईच कलर जो है इट इज दिस कलर इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। कलर जो है ये फंक्शन फ्रीक्वेंसी की है। हर किसी कलर की एक यूनिक फ्रीक्वेंसी होती है, एक अपनी वेवलेंथ होती है। तो दैट फ्रीक्वेंसी गिव्स अ सेंसेशन ऑफ कलर, यानी ये किस कलर से बिलोंग करता है। हाउ वी कैन से दैट दिस इज ग्रीन, दिस इज रेड, दिस इज वायलेट, दिस इज ब्लू, बिकॉज ऑफ इट इज यूनिक फ्रीक्वेंसी। दैट इज वी कैन से दैट कलर इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो अगर यहाँ पे देखा जाए हर किसी कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ और अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो जब वेवलेंथ की बात की जाए हमारी विबगोयार में, तो वायलेट की अपनी वेवलेंथ है, इंडिगो की अपनी, ब्लू की अपनी, ग्रीन की अलग है और रेड की अलग वेवलेंथ है। तो हमें इस वेवलेंथ को करना क्या है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो हमें जो यहाँ पे मेन टॉपिक जो है अब वो है कॉज ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का काज क्या है। हम काज ऑफ डिस्पर्शन पढ़ते हैं तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, हर किसी कलर की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ है। तो एक एज पर कोशीज इंटरमिशन इक्वेशन, कोशीज ट्रांसमिशन इक्वेशन की बात अगर की जाए, कोशीज ट्रांसमिशन इक्वेशन और इसको कोशीज फार्मूला भी कहते हैं। कोशीज फार्मूला, ये फार्मूला क्या है, इट इज एक्चुअली इट गिव्स रिलेशनशिप। ये फार्मूला जो है इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के दरमियान, म्यू दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ ऑफ ए color for a particular transparent medium। अगर कोशीज ट्रांसमिशन इक्वेशन या कोशीज फार्मूला की बात की जाए, ये कोशीज ट्रांसमिशन इक्वेशन और कोशीज ट्रांसमिशन फार्मूला क्या है, सिंपली इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड लैम्बडा दैट इज वेवलेंथ ऑफ ए कलर फॉर ए पर्टिकुलर ट्रांसपेरेंट मीडियम। यहां पे हमने प्रिज्म लिया है, इस प्रिज्म का अपना u यानी म्यू होगा, दैट इज इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो ये कोशीज फार्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू कोशीज फार्मूला म्यू दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स a प्लस b डिवाइडेड बाय लैम्बडा स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाय लैम्बडा रेज पावर 4 डैश डैश। अगर म्यू क्या है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर इस लैम्बडा की बात की जाए इट इज वेवलेंथ ऑफ ए कलर। तो ए बी सी जो है दे आर कॉन्स्टेंट्स, ए बी सी दे आर कॉन्स्टेंट्स, एबीसी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। नाउ अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट, अगर इस कॉन्सेप्ट इस कोशीज फार्मूला को अप्लाई किया जाए तो अगर यहां पे हम देखेंगे इट मीन सिंपली यहां पे हम करेंगे इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेट, जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा। वेवलेंथ ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, बिकॉज ये सारे कॉन्स्टेंट्स है तो इट मीन्स इनवर्स रिलेशनशिप यहां होगी।
इट मीन्स जो ये म्यू है, एज पर द कॉशीज इक्वेशन, कॉशीज ट्रांसमिशन इक्वेशन अगर हम अप्लाई करेंगे फॉर डिफरेंट कलर्स, तो इट मीन्स म्यू फॉर वायलेट होगा डिफरेंट एंड म्यू फॉर रेड वो भी होगा डिफरेंट, म्यू फॉर ब्लू वो भी होगा डिफरेंट। हर किसी कलर का अपना अपना वैल्यू आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। वाई? बिकॉज हर किसी कलर की जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट है। एज पर दिस कॉशीज इक्वेशन दिस म्यू विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। तो अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो किसकी है? रेड की है। इस स्पेक्ट्रम में अगर देखी जाए सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की है। दैट मीन्स म्यू, दैट इज म्यू फॉर रेड वो क्या होगा? सबसे ज्यादा इसकी वेवलेंथ, दैट इज म्यू हो गई मिनिमम। अगर म्यू वायलेट की बात की जाए, सबसे कम जो वेवलेंथ है इस स्पेक्ट्रम में वो किसकी है? वायलेट की है। लेसर द वेवलेंथ ग्रेटर विल बी म्यू, तो म्यू वायलेट क्या होगा? मैक्सिमम। तो ये यहां पे याद रखना। और वी इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट इट एज म्यू फॉर वायलेट क्या होगा? ग्रेटर देन म्यू फॉर रेड। यहां तक क्लियर है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसको करना क्या है? हमें इस म्यू को क्या करना है? जो कल हमने एंगल ऑफ डिविएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा प्रिज्म में, दैट इज एंगल ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए। एक्चुअली जो यहां पे हम देखते हैं वायलेट डिवेट हुआ है, रेड डिवेट हुआ है, दैट इज एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन जो है इट हैज गॉट अ रिलेशनशिप विद म्यू। इसको म्यू के साथ रिलेशनशिप है। दैट इज वाई हमने इस म्यू को यहां पे इस कॉशीज ट्रांसमिशन इक्वेशन से हमने ये रिलेशन डिराइव की है। वाई? बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड हियर। हमें यहां पे प्रूव करना है वाई व्हाट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ द डिस्पर्शन, दैट इज वाई वायलेट गेट्स डिविएटेड मैक्सिमम and why the angle of deviation for red is minimum. That is because of the variation of this mu. How this mu varies? This mu varies with the wavelength of each characteristic color. यानी हर किसी कलर की जो वेवलेंथ है वो कैरेक्टरिस्टिक यानी यूनिक होती है, तो दैट mu varies accordingly with the wavelength of the color. जब वो वेरी होता है तो इस mu को हम एंगल ऑफ डिविएशन के साथ जो कल हमने रिलेशन डिराइव की थी, that is angle of deviation is equal to mu -1 into a. जब हमें एंगल ऑफ डिविएशन अब कैलकुलेट करना है फ्रॉम दिस म्यू, तो म्यू फॉर वायलेट इज ग्रेटर देन म्यू फॉर रेड। तो ये जो म्यू वायलेट है वो ग्रेटर है देन रेड। व्हाई? बिकॉज वायलेट हैज मिनिमम वेवलेंथ एंड रेड हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। तो दैट इज वाई हम यहाँ पे अगर एंगल ऑफ डिविएशन फॉर वायलेट हम निकालेंगे, that will be greater than angle of deviation for red. जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे म्यू को यहाँ पे इंसर्ट किया जाए, क्योंकि जो म्यू वायलेट है वो ज्यादा है किससे? देन रेड। तो जाहिर सी बात है कि जो एंगल ऑफ डिविएशन भी होगा वायलेट का वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेड। दैट इज वाई यहाँ पे जो देखा गया है each color deviates or turns through different angle of deviation through different angles। यानी कि एंगल ऑफ डिविएशन का जो वैल्यू है हर किसी कलर का यूनिक वैल्यू है, अपना अपना वैल्यू है। दैट इज वाई जब ये रे ऑफ वाइट बीम ऑफ लाइट यहां पे पहुंच जाता है इस पॉइंट पे, तो जब डिफरेंट एंगल्स ऑफ डिविएशन है डिफरेंट कलर्स के, तो दे टर्न और दे डिविएट थ्रू रेस्पेक्टिव एंगल्स, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एंगल्स ऑफ डिविएशन। दैट इज वाई वी ऑब्टेन हियर दिस स्पेक्ट्रम, दैट इज द वेवगायड। तो यहां पे अगर देखा जाए दैट इज ग्रेटर द म्यू, जितना म्यू ज्यादा होगा इतना एंगल ऑफ डिविएशन भी ज्यादा होगा। दिस इज ऑल अबाउट द कॉज डिस्पर्शन एंड कॉज ऑफ द डिस्पर्शन।